Assalamu alaikum students. Dear students, today we will discuss physics of class 10th, chapter number 1, simple harmonic motion. In simple harmonic motion, chapter number 1, firstly we will discuss what is periodic motion with example, what is oscillatory motion with example, what is simple harmonic motion. Periodic motion. Periodic motion. In periodic motion, the body repeats its path regularly in equal interval of time. So we can write the motion of an object in which it repeats its path regularly after an equal interval of time. An equal interval of time is called periodic motion. It's called periodic motion. For example, the motion of a body which repeat its path in equal interval of time, that is called periodic motion. The motion of a mass attached to an elastic spring performs the motion of earth around the sun. So earth perform periodic motion around the sun when it revolves from around the sun, and they take equal interval of time when it repeat its path. Then this type of motion is called a periodic motion, or the motion of a string of a guitar. The motion of spring of guitar also perform periodic motion. The motion of fans also perform periodic motion. So periodic motion again divide into two categories. Periodic motion is divided into two types. First is oscillatory motion. Another one is non-oscillatory motion. Non-oscillatory motion means that periodic motion is divided into two types. First is oscillatory motion, another one is non-oscillatory motion. What is oscillatory motion and what is non-oscillatory motion? So let me to explain oscillatory motion with example. That periodic motion in which object moves forth and back, that is called oscillatory motion. Or that periodic motion in which object moves
up and down, or the back and forth motion, of a body about its fixed mean point, is called oscillatory motion. So periodic motion is divided into two types. First is oscillatory motion, another one is non-oscillatory motion. Oscillatory motion, the periodic motion in which object moves back and forth. The periodic motion in which object moves back and forth about its mean position, about a fixed position, that type of motion is called oscillatory motion or vibratory motion. Or we can define this oscillatory motion in that periodic motion in which body moves up and down, or the back and forth motion of a body about its equilibrium position, about its mean position, that is called oscillatory motion or example. Or we can define according to the textbook, or the motion of the to and fro motion of a body, the to and fro motion of a body about its equilibrium, position is called oscillatory or vibratory motion. So the motion of a body about its mean position, about its equilibrium position, that is called oscillatory or vibratory motion. For example, the motion of pendulum. A pendulum performs to and fro motion about its mean position. When a body performs just like this type of motion, that is called vibratory motion or oscillatory motion. When a body is displaced from its mean position up to extreme position and then released, then the body will move towards the mean position and another extreme position. This type of motion is called example of oscillatory motion. Or example, the motion of a pendulum. Number 2, the motion of a spring, mass attached to a spring, mass attached to an elastic spring. The motion of a string of a guitar. So all these perform vibratory motion or oscillatory motion. The motion of mass attached to an elastic spring. When a mass is attached to an elastic spring, and then if I release this mass to some displacement and then I release it, then the mass will move towards the mean position, and it does not stop at mean position, but it will move towards another extreme position. So in this way the body will perform oscillatory motion or vibratory motion. So before the explanation of non-oscillatory motion, let me to explain these in Urdu. So ये चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लास 10 की फिजिक्स में हम पहले पढ़ेंगे कि पीरियडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियडिक मोशन क्या होता है.
किसे कहते हैं? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच इट रिपीट इट्स पाथ रेगुलरली आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम कहते हैं कि पीरियाडिक मोशन वो मोशन होता है बॉडी का जो वो अपना मोशन जो होता है वो इक्वल इंटरवल में रिपीट कर देता है। दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। अब अगर किसी मास को मैं स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर लूँ और मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लूँ तो ये मास जो होगा, जैसे यहाँ पर मैं छोड़ूंगा तो ये मास जो होगा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ, फिर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, इसी वे में ये मास जो होगा बैक एंड फोर्थ मोशन प्रोड्यूस करेगा। यानी हम कहते हैं कि ये मोशन प्रोड्यूस करेगा। इफ यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर वहाँ से लेकर एक कंप्लीट राउंड उसने 1 सेकेंड में लिया है तो दूसरा कंप्लीट राउंड अगर वो फिर 1 सेकेंड में लेगा तब हम इसे कहें कि ये पीरियाडिक मोशन है। फॉर एग्जांपल ये जो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन है, सन की गिर्द, ये सन है, इसकी गिर्द ज़मीन इस तरह रिवॉल्व करती है, इस तरह आती है यहाँ तक। इसने फॉर एग्जांपल टाइम लिया है 5 सेकेंड। तो ये दोबारा जब सेकेंड ट्रिप करेगा और फिर भी ये 5 सेकेंड लेगा तो हम कहेंगे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये मेरे पास पेन है, इसको मैंने यहाँ से धागे से बांधा हुआ है, ये इसकी बिल्कुल मीन पोजीशन है। अब जब इसको मैं ऐसे कर लूँ और ये ऐसे मूव कर रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने 1 सेकेंड लिया और फिर वहाँ से लेकर यहाँ तक फिर ये 1 सेकेंड लेगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये पीरियाडिक मोशन है। तो ये जो है एग्जाम्पल मैंने दिया है पीरियाडिक मोशन के, द मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, मोशन ऑफ फैन। कहते हैं कि ये जो पीरियाडिक मोशन है हमारे पास 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, दूसरा हमारे पास होते हैं नॉन ऑसिलेटरी मोशन, वो इंशाल्लाह इसके बाद में डिस्कस करेंगे। ऑसिलेटरी मोशन हम कहते हैं दैट पीरियाडिक मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स फोर्थ एंड बैक। ये वो पीरियाडिक मोशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे हरकत करता है, आगे पीछे हरकत जो करता है दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो हम कहते हैं इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स अप एंड डाउन, या ऑब्जेक्ट जो है ऊपर नीचे हरकत करता है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। या हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट इट्स अ मीन पोजीशन, या अकॉर्डिंग जो 10th क्लास का बुक है उसमें भी इस तरह डिफिनेशन लिखा है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन और इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड अ ऑसिलेटरी मोशन। यानी किसी बॉडी की मीन पोजीशन से आगे पीछे हरकत को या अप एंड डाउन हरकत को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल इसके है, एग्जाम्पल द मोशन ऑफ पेंडुलम। जो पेंडुलम है हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। मोशन ऑफ सिंपल मास अटैच टू अ स्प्रिंग, मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, ये जो है ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। तो आते हैं नॉन ऑसिलेटरी मोशन। नॉन ऑसिलेटरी मोशन सो हम कहते हैं कि दैट पीरियाडिक motion in which object does not move back and forth, or we can say that that periodic motion in which object does not move up and down, does not move back and forth, that type of motion is called a vibratory motion. For example of non-periodic motion, example of non-oscillatory motion are the motion of earth around the sun, the motion of hands, the motion of hands of a clock, the motion number 3rd, the motion of hands of a clock, the motion of fans are not oscillatory motion, but they are non-oscillatory motion. From these examples we have learned that all the periodic motions are not oscillatory motions, that all the periodic motion
are not oscillatory motion. Number 2, but all the oscillatory motion are but all the oscillatory motion are periodic. Explain this non-oscillatory motion in Urdu. नॉन ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास वो पीरियडिक मोशन होते हैं जिसमें बॉडी मीन पोजीशन से आगे पीछे हरकत नहीं करते, यानी जो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशंस है वो किसी मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे पीछे हरकत करेंगे, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, जिसके में मोशन ऑफ पेंडुलम, ऑल दीज परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक ऑल दीज परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन. बट नॉन ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होते हैं, वो पीरियडिक मोशन होते हैं जिसमें बॉडी अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे हरकत नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल ऑफ जो मैंने दिया है एग्जाम्पल है मास अर्थ की जो है ज़मीन की, अगर हम एग्जाम्पल लें, ज़मीन जो है सूरज के गिर्द सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, बल्कि एक पॉइंट से या फिक्स्ड पॉइंट से या मीन पोजीशन से या एक्सट्रीम पॉइंट से इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं करता. सो अर्थ का जो मोशन है अराउंड द सन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑसिलेटरी मोशन. एग्जाम्पल ऑफ जो हमारे पास है हैंड्स ऑफ अ क्लॉक है, एग्जाम्पल ऑफ फेंस जो है, ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन. सो इन एग्जाम्पल से हमने दो बातें सीख ली है कि ऑल द पीरियडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन. जितने भी पीरियडिक मोशंस हैं वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकते. जैसे कि मेरे पास वो जो एग्जाम्पल है मास ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मास ऑफ फेंस, मास ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, दे आर नॉन ऑसिलेटरी मोशन बट दे आर पीरियडिक. तो हम कह सकते हैं कि जितने भी पीरियडिक मोशंस हैं वो ऑसिलेटरी मोशन सारे के सारे नहीं हो सकते, बल्कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो सब के सब पीरियडिक मोशन होंगे. Oscillatory motion is again divided into two types. First is simple harmonic motion. Another one is non-simple harmonic motion. Non-simple harmonic motion. So let me to explain simple harmonic motion, and finally I will explain with example non-simple harmonic motion. So simple harmonic motion, let me to explain this type of motion with the help of example. Later I attached body of mass m with an elastic spring. So at this position the body is at rest, and this position is called the mean position or equilibrium position. Now when I displace this body from mean position to extreme position, let the displacement from mean position is x. Let me to repeat. When I displace the body of mass m from its mean position to some displacement, let the displacement is x. When I release this body, the body will move towards the mean position due to some agent. That agent is called restoring force. Or we can simply say that when a body is displaced from mean position to some extreme position, then the body will move towards mean position due to a restoring force. For that, if I increase the displacement, then the restoring force will be also increases. So I can write the restoring force is directly proportional to x. Now look at this diagram.
direction of the displacement is in that and the restoring force both are in opposite direction, so I will put the negative sign with the displacement, means that the force and displacement are in opposite direction. So I can write a restoring force is equal to, when I replace sign of proportionality into equality, we will put some constant into minus x. Later this constant is k into x, so restoring force will be equal to k minus x. According to the Newton's second law, when a force exerted on a body, it will be produce acceleration in a body in its own direction. So I can write, according to the Newton's second law, according to the Newton's second law of motion, F is equal to ma. So this is equation 2, let this is equation 1. So compare equation 1 and 2, compare equation number 1 and equation number 2, we get ma is equal to minus k into x. Let divide this equation by m to both sides, so a will be equal to minus k divided by m into x. Here k and m are constant, so we can write a is equal to constant into minus x. Here a is equal to constant into minus x, or this implies that a is directly proportional to minus x. So these two equations, from these two relations, we can say that the simple harmonic motion is that type of motion in which restoring force is directly proportional to the displacement. So we can define simple harmonic motion is that type of vibratory or oscillatory motion in which restoring force is directly proportional to the displacement and always directed towards mean position. That is called a simple harmonic motion. So let me explain in Urdu. ऑसिलेटरी मोशन बेटा हम फिर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरे को हम कहते हैं नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट हम सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करते हैं, बाद में इसका एक एग्जांपल भी देंगे नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन के। तो ये मैं एक एग्जांपल से आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, अगर मैं किसी बॉडी को ऑफ मास m को अटैच कर लूँ किसी एक इलास्टिक स्प्रिंग के साथ, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल पोजीशन पर ये बॉडी जो होगी वो बिल्कुल रेस्ट पे होती है, तो उस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब अगर मैं इस बॉडी को ऐसे फोर्स लगाऊं, इसको इस तरह डिस्प्लेस कर लूँ, लेट वो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया है x। अब यहाँ पर इस बॉडी को जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये बॉडी जो होगा वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, बल्कि इस अनदर मीन एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ये मोशन करेगा। तो इस तरह ये बॉडी जो होगी वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगी, यानी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगी। अब इस ऑसिलेटरी मोशन में अब देखिए, जब हम डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करेंगे, यानी जितना ज़्यादा मैं बॉडी को इस तरह स्ट्रेच करूंगा तो उतना ही ज़्यादा इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। अब मतलब इसका यह है कि जितना डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा इसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब यह है कि रिस्टोरिंग फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। तो हम लिख सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ग्राफ में देखें, जब हम इसको इस साइड से लेकर
कराते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होती है और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन पुट करेंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है जब ये हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ कांस्टेंट पुट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू माइनस एक्स। इस कांस्टेंट की जगह मैंने लिखा है के। सो मैं लिख सकता हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमारे पास माइनस के एक्स के बराबर है। यहाँ पर के क्या चीज़ है? के को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसे हम कहते हैं कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं या इसको हम कहते हैं स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ये के जो है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और या इसको स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग भी कहा जाता है। और इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द स्प्रिंग है स्प्रिंग पे। यानी के की जो वैल्यू है के वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अ स्प्रिंग। नेचर ऑफ स्प्रिंग पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आए थे। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स होगा उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे फोर्स भी लगा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी इसने कवर किया है, तो इसमें एक्सेलरेशन भी होगा। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा इस बॉडी में इन इट्स ओन डायरेक्शन, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए। सो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर ले। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स और ए एम को इस साइड पर लेकर आए तो डिवाइड हो जाएगा। ए इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू एक्स। यहाँ पर ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ द स्प्रिंग पे। और मास जो है मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये तीनों जो है ये दो क्वांटिटी जो है ये मेरे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इनकी जगह मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट ए इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू माइनस एक्स। जब ये इक्वलिटी साइन प्रोपोर्शनलिटी में चेंज होगा तो ये कांस्टेंट भी खत्म हो जाएगा। तो हम लिख सकेंगे लिख सकते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन से और एक वो जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया है उस इक्वेशन से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन कर सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट टाइप ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position. Simple harmonic motion वो मोशन होगा यानी वो oscillatory मोशन है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट रिलेशन है और हमेशा उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगा। या इस इक्वेशन की बुनियाद पे हम डिफिनीशन लिख सकते हैं कि आर the type of oscillatory motion in which acceleration is directly proportional to the displacement and always directed towards mean position or equilibrium position is called simple harmonic motion. is called SHM, simple harmonic motion. या हम कहते हैं कि वो ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन
जो कि प्रोड्यूस हुआ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन रिलेशन है, ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन है। नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन की, लेट सपोज मेरे पास एक बॉल है फ्रॉम सम हाइट और ये यहाँ पर किसी भी सरफेस है, हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h डिस्टेंस पर है। अब ये बॉडी जब मोशन करता है फ्रीली तो ये बॉडी यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर इलास्टिकली यहाँ पर ये जो सरफेस है इलास्टिक प्लेन सरफेस है, इस पे बाल ये फिर टकराएगा और फिर ये इस तरह जो है ऊपर नीचे जाएगा। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास डज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द displacement, and it does not directly proportional to the displacement, then that type of oscillatory motion is called a non-oscillatory नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी ऐसा टू एंड फ्रो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, तो इसमें हम क्या कहते हैं, नॉन ऑसिलेटरी नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। फिर से देखें, जब बॉल किसी भी इलास्टिक प्लेन सरफेस से ऊपर है, अब एट हाइट सम डिस्टेंस हाइट पे है, वर्टिकल डिस्टेंस पे है, जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये बॉल जो होगा नीचे आएगा, इस पे टकराने के बाद ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे। तो इसमें हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है जिसे हम कहते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली रिलेशन नहीं होगा। यानी सिंपली मैं कहता हूँ कि जब बॉडी कोई ऐसा मोशन परफॉर्म कर ले जिसमें एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, उस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन वो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पीरियडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये आप लोगों ने सीख लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। इसका जो पीरियडिक मोशन है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, वो इंशाल्लाह सब कुछ आगे जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।